راہ پر جس راہ پر سب ہی چلے، ہم کیوں چلے اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلے، کیوں نہ چنے وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا۔ دل اداس نظریں اداس دل پر نہیں، گھر آس پاس دن رات آہ بھرنا اور بے قرار رہنا، یہ کھیل ہی بیکار ہے کچھ بھی نہیں انگار ہے، اس آنکھ میں جلے کیوں پل پل دیے مرے کیوں، ہم کیوں چلے اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلے، کیوں نہ چنے وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا۔ بس دیکھنے کی بات ہے کہ عشق کیا ہے، ہزار عشق لاکھوں صنم چھپے ہیں اور راہ دیکھتے ہیں، چلو عشق کا کہہ مان کر اپنا صنم پہچان کر کسی ایسے رنگ میں رنگ جائے سب سے جدا نظر آئے، ہم کیوں چلے اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلے، کیوں نہ چنے وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا۔ ایک بچپن کا زمانہ تھا، خوشیوں کا خزانہ تھا، چاہت چاند کو پانے کی دل تتلی کا دیوانہ تھا، تھک کر آتے تھے اسکول سے پھر کھیلنے بھی تو جانا تھا، بارشوں میں کاغذ کی کشتی ہر موسم سہانا تھا، پر کھیل میں ساتھی تھے ہر رشتہ نبھانا تھا، رونے کی وجہ نہ تھی بس ہنسنے کا بہانہ تھا، پر اب نہ رہی وہ زندگی جیسا بچپن کا زمانہ تھا۔ عزیز دوستو، سچ بولنا اور حق اور سچ کی راہ پر چلنا نہایت ضروری ہے، یہ ہماری زندگی کا نصب العین اور مشعل راہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے بہت سے چہرے مطلب پرستی اور لالچ میں آ کر انسانی کردار اور انسانی شناخت کھو چکے ہیں، لیکن ہم بچے من کے سچے ہیں۔ آج جو کہانی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایسے ہی سچے اور اچھے بچوں کی کہانی ہے، یہ بچے عمر میں چھوٹے پر کردار کے بڑے ہیں، ان کی اپنے خاندان اور دوستوں سے محبت بے مثال ہے، ان کی دادی گو کہ اب حیات نہیں لیکن یہ ان کی اخلاقی کہانیاں اب بھی یاد رکھتے ہیں، یعنی ان کی دادی ابھی تک ان کے لیے زندہ ہے۔ بے شک بلند کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور انسان اپنی عمر سے نہیں کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، عمر کے عدد کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ہم حالات کے مطابق بڑے یا چھوٹے ہوتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں،
جن کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جبار محسوس کرتے ہیں، اور جب دنیا ہمیں تنگ کرتی ہے تو بوڑھے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی سے اس کی عمر مت پوچھیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم حالات، سفر، جدا ہونے اور دوری کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری عقل کو بڑھا دیتی ہیں اور کچھ ہمارے دلوں کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں سالانہ اردو کے 2024 بچے من کے سچے۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو۔ تمہارا جذبہ قابل تعریف ہے، لیکن تم اس کے برعکس ہو۔ نہ پڑھتے ہو نہ لکھتے ہو، سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہو، کبھی نہر کے کنارے تو کبھی درخت کے نیچے، سارا دن دوستوں کے ساتھ۔ تم وقت کی قدر نہیں کرتے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن صاحب، آپ ہی نے تو کہا تھا پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب، کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب۔ ارے نامعقول، میں نے یہ سب کب کہا؟ ہمیشہ الٹا سنتا ہے۔ سوری، معذرت چاہتا ہوں صاحب، میرے عزیز استاد محترم۔ جی میرے بیٹے، اگر آپ سے بدتمیزی کروں، آپ کی پتہ کلامی کروں، آپ کی بات نہ مانوں، آپ کی شان میں گستاخی کروں، یا پڑھوں نہ تو بس جو کہتا ہے کر لے، میں سننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ نہایت نامعقول، جھوٹے، واپس آ، نالائق کہیں کے، نہایت ساتھی جماعت کا طالب علم ہوں، اور یہ ہے میرا بھائی محمد جو کہ 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے، اور یہ ہے میرا سب سے بڑا احمد جو کہ 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے، اور یہ ہے میرے والد عبداللہ بیگ صاحب جو کہ ایک گورنمنٹ آفیسر ہیں، اور یہ ہے میری والدہ خدیجہ بیگم صاحبہ۔ سیاسی جماعت کی رکن ہے، اور یہ ہے میرے دادا ڈاکٹر پروفیسر عبدالحق صاحب جو کہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔
और ये है मेरे घर का मुलाजिम रहीम चचा, जो कभी काम कर काम नहीं करता, हर वक्त सोता रहता है। और जी हाँ, इनसे मिलिए, ये है मेरी दादी आमा बेगम साहिबा, जो कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारे इस मोहल्ले में फी सबीलिल्लाह कुरान पढ़ाना शुरू किया। और ये है मेरी प्यारी टीचर मिस सबा, वो बहुत काबिल, बहुत लाइक और बहुत मेहनती है, सिर्फ अपने मोबाइल को बढ़ाना। और ये है कुतुबुद्दीन साहब, दादा के पुराने दोस्त और यूनिवर्सिटी के भी पुराने दोस्त। ये हमारे घर हमें पढ़ाने के बहाने दादा से मुलाकात करने आ जाते हैं और कोई ना कोई काम तो जरूर निकलवा कर जाते हैं। आप इनको पहले से जानते होंगे, इन्हें कौन नहीं जानता। और इनसे मिलिए, ये है मेरे उस्ताद, अजीम उस्ताद मोमिन मुख्तार साहब, जो कि जिन्होंने हमें सारी अच्छी बातें सिखाई हैं। और ये है मेरे पड़ोसी आहद, माहद और फाहद, आपस में है ये हम काफिला, लेकिन सबके हैं ये साथ। ये बाएं से है मेरा घर और ये बाएं से मेरा पड़ोसी। हम 5 वर्ष पहले इस मोहल्ले में आए, तभी था मैं छोटा सा एक बच्चा, भोला भाला पर मन का सच्चा। आए, अब मैं आपको घर से बाहर लेके जाता हूँ और बाहर की दुनिया दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ चलिए। ना मिलेंगी ऐसी रंगीन मिठाइयाँ, चाहे घूम लो दुनिया पूरी। मुझे मिठाई किस कीमत पे दोगे? ये नई मिठाई मुफ्त दे दो ना। उसी कीमत पर जिस पर सबको देता हूँ। हमारी तो दुकान है, बस कभी चलती है कभी नहीं, गरीब आदमी जो ठहरा। अरे भाई, गरीब आदमी किधर से आ गई तुम? अब्बा बता रहे थे कि हमारे ही मोहल्ले में किराए का सस्ता घर हासिल करने के लिए पिछले ही हफ्ते अब्बा को मुफ्त मिठाई भेजी थी। और जब भी कोई सियासी काम करवाना हो तो आप अपनी दुकान की स्पेशल मिठाई हमें ही तो भेजते हैं। और इस बार तो अब्बा बता रहे थे कि लाहौर में आपकी को बड़ी दुकान खुली है। क्या कहा? तुम मोहतरम अब्दुल्ला बेग साहब के बेटे हो? जी, हम उनके ही बेटे हैं। अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। आओ तुम तीनों को इस दुकान से जो पसंद आता है वो रखो। बस बेग साहब से गुजारिश करना कि इस बार भी मेरा ख्याल रखें। मैं कुछ परेशान हूँ, इस बार भी बहुत बड़े बड़े बिल आए। अंकल, हम ये तमाम मिठाइयाँ और ये तमाम मसला बगैर पैसों के तो हर दिन नहीं लेंगे। अंकल, मेरे उस्ताद कहते थे कि इंसान अपनी नीयत का ही रिज़्क़ और अजर हासिल करता है। अगर हमारी नीयत मतलब परस्ती की होगी तो यही मीठी और मजेदार अशिया भी फीकी है। तुम्हें इतनी देर से क्रिकेट हो गई, कहाँ गुम थे तुम तीनों? अम्मा, हम तो ये दुनिया है शायद जहाँ हर दूसरा शख्स मतलब परस्ती और खुदगर्जी के अंधेरों में गुम है। अंकल, ये 100 रुपया लीजिए। मैंने असद और मोहम्मद ने आपकी दुकान से 4 लड़कियाँ उठाई हैं। चलो
जल्दी, मुझे और भी काम है। बंद करो ये अरे फलसफे। बेटा चलो, ये पैसे चलो। तो वापस बेटा मम्मी है मेरा मजेदार यही नहीं। चलो आओ। काम है मेरा। सेब, अनार, जामुन और आम, वो जन्नत जैसा हर काम है मेरा। आओ आओ, हर फल यहाँ खाओ, कम कीमत कम भाव। अच्छा अच्छा, क्या भाव दे रहे हो? भाजी, आपसे क्या कीमत क्या सौदा, एक साहब हमारे मालिक और हम उनके गुलाम। नहीं नहीं अंकल, मेरे उस्ताद कहते हैं कि मालिक उससे पल्ला है, हम उसके गुलाम, उसी के बंदे। अब्बा कुछ दफा बता रहे थे असलम तो उसकी दुकान का टैक्स बिल्कुल माफ नहीं है। अम्मा, आपने पिछले हफ्ते भी अंकल असलम की दुकान से आमों और जामुन की पेटियां मुफ्त ली थी। हमारे उस्ताद कहते हैं कि वाले मुफ्त दिले मेरे में बिला मकसद और हर कदम किए बगैर किसी का माल खाना नाजायज और हराम है। हम अच्छे बच्चे हैं, हम हराम नहीं खाते। खामोश हो जाओ तुम तीनों। चलो जल्दी, मुझे और भी काम है। बंद करो ये फलसफे। पागल हो गए हो तुम तीनों। अम्मा, पागल तो ये दुनिया हो गई है शायद। यहाँ हर दूसरा शख्स मतलब परस्ती और खुद गर्जी के गोया अकल और शौक हो चुका है। अंकल, हमें फलों की कीमत बताइए, वरना ये मतलब परस्ती की सौदेबाजी को जाने दीजिए और जाइए। सफेद सफेद और ताजा दूध, आपको दूध दे लें। मोती जैसे बिखरे दूध, दही मलाई और ऐसी सफाई जैसे जन्नत में नहरे अरूज, ताजा मक्खन और ताजा ही दूध। अरे बाजी आप, बहुत माजरत, मैं एक हफ्ते से आपके घर मक्खन और दही नहीं ला सका। इसमें आप माजरत की कौन सी बात है अंकल? अब्बा ने आपकी सियासी पार्टी को छोड़ दी है। अब्बा आपके काम के भी काम नहीं करते। वैसे भी आप कौन सा सब कुछ नॉलेज देते हैं, हर चीज में मिलावट, बिल्कुल नियत और जुलूस की तरह। तुम तीनों उलझे हो गए हो। मैंने आइंदा तुम तीनों को कभी नहीं लाना। अम्मा आगे सब्जियां लेते हैं। आह, टमाटर बड़ी मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। अरे बाजी आप, क्या भाव दे रहे हो? बाजी वही 150 रुपए आलू, 200 रुपए प्याज, 200 रुपए टमाटर और 800 रुपए लहसुन। ले ले, वैसे भी हरी हरी मत पड़ी है, हम पास पड़ी है, जन्नत के खेतों की लगती है, हर सब्जी ऐसे जैसे पड़ी है। अरे भाई, झूठ बोलकर माल पीछे हो, शर्म नहीं आती। हमारे उस्ताद मोमिन मुख्तार साहब कहते थे, झूठ में बरकत नहीं होती। और लड़की ज्यादा लिखे हुए हैं, ऐसे कौन अमीर हुआ है भाई? तुम तीनों अंधे हो गए हो। अभी कहा था, अब मैंने आइंदा तो तुम तीनों को कभी नहीं लाना। अम्मी, अभी तो ये दुनिया हो गई है अब, जहाँ हर दूसरा शख्स दुनियादारी और हवस में या इक़्तिदार के नशे में अंधा हो चुका है। खामोश हो जाओ तुम तीनों। और खबरदार किसी को बताया मैं इतवार बाजार आती हूँ। हमारे गिर्द सब ब्रांड पहनते हैं, हमारी क्या इज्जत रहेगी? लेकिन अम्मी, इस बाजार में आज सब लोग हमारी तरह इंसान ही तो है। हम झूठ नहीं बोलते, हम क्या करें? जाओ गाड़ी में बैठो, मैं एक काम करके आती हूँ। बात जाओ जाओ। अपनी एक दफा में। अच्छा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। रहे नसीब, वालेकुम अस्सलाम। बताएं कैसे आना हुआ? ये सूट सिलवाने थे। अच्छा, बताइए कब तक चाहिए आपको? ये मुझे, चलो लिखिए लिखिए, ये मुझे कल तक तैयार चाहिए। कल तक? हाँ जी, कल तक। वैसे भी आपकी सिलाई कौन सी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, सी दूंगा मैं आपको एक कल तक। वैसे भी जितने जल्दी कपड़े
रखिएगा हमारा भी भरम। चल अब मैं चलता अच्छा हूँ। बेगम अभी साहिबा, नहीं, अभी बहुत देर हो रही है। बेगम साहिबा बर्थडे लोग बढ़िया करना। अरे मियाँ, अरे कोई है? अरे कोई है इस घर में? कैसा घर है ये? जब कुछ कहने आओ कोई नहीं, कुछ लेने आओ कोई नहीं। ऐसे हर वक्त घर में इनके बच्चों का मेला लगा फिरे और पूरे मोहल्ले में इनके बच्चों का मेला। कौन है? दोपहर में आराम भी नहीं। कौन है? खदीजा बेगम, मैं तुम्हारी बड़ी खाला। अरे मैं अगली गली क्या चली गई और तुम तो मुझे भूल ही गई। और बच्चा है तुम्हारा, संभालो इसे, जो मुझे रात को भी आराम नहीं करने देता। जब देखो गली में नाचता फिरता है। मैं नहीं जानती थी मोहतरमा कि पान खा खा कर ना सिर्फ तुम्हारे दांत काले हो गए हैं बल्कि तुम्हारी जबान भी काली हो गई है। पहले पूरे मोहल्ले की चुगलियां लगाती फिरती थी और अब मेरे मासूम बच्चे पर इल्जाम लगा रही हो। अरे सया जबान होगी उसकी जो मेरे जैसे नेक पाकीज़ा वो रिश्ता सिर्फ औरत को बुरा भला करे। तुम्हारे लड़के ने हमसाए को खेल का मैदान बना दिया है, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल और कभी वॉलीबॉल। मेरे फहद, महद और आहद को भी खेल कूद में लगा रखा। बिल्कुल पढ़ाई से दूर कर दिया मेरे मासूम, मेरे काबिल बच्चों को। कल लगी फहद के सर पर बॉल, आज लगी महद के सर पर चोट और आहद को तो मैंने खेल कूद से दूर कर दिया है। वो अहमद के साथ नहीं खेलेगा, वो भी अहमद की तरह हमारे। जी क्या हुआ? अब वो क्या अहमद की तरह हर चीज मेरी बुराइयां करनी होती है मेरे बच्चों बैठने की? को कह देता है। बातें सुनाना बंद करती तो बिठा कहता ना। कल दोबारा हमारे घर की खिड़की टूटी, ये 4 साल पहले भी टूट चुकी है। बीबी कल तक तो हमारे घर की खिड़की से बॉल आती रही, आज तो फुटबॉल भी आ गई और इससे पहले कुछ हो रहा है। मैं खुद ये क्रिकेट गेंद और फुटबॉल लेकर आ गई हूँ। अहमद और उसके लाडले शागिर्द असद को कहना कि बाज आ जाए और आइंदा मेरी बच्चों की गली में आकर ना खेलें। हम तुम्हारी सियासी पार्टी और हमसाए अब इसलिए नहीं कि हम तुमसे बेहतर हैं। आज के बाद मेरे बच्चे तुम्हारी गली में आकर कभी नहीं खेलेंगे। तुम्हारे आहद, फहद और महद ने मेरे बच्चों को भी अपनी तरह पढ़ाई में निकम्मा कर दिया है। ये शरारत की कुड़ियों से दूर ही रहे तो बेहतर है। आ जाओ अंदर, फहद, महद, आहद। सुन लो बच्चों, आइंदा इस घर में नहीं आओगे, ये बदतमीज बच्चों का घर है। खाला बदतमीज नहीं, नहायत बदतमीजी बोले। ओ असद, वही बच्चा जिसकी वजह से मेरा बेटा आहद 3 वर्ष से 5वीं जमात में ही है। खाला बच्चों की दुनिया का सियासत से क्या लेना देना है? बदकिस्मती से हमारे शहरों में खेल के मैदान बहुत कम है, तो हमें घरों के आसपास खेलना पड़ता है। लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं। इस तरह कई बच्चे, कई दिल, कई हमसाए और मकान एक हो जाते हैं और कई गलियां रोशन और कुशादा हो जाती हैं। मेरे उस्ताद कहते थे कि खेल के वक्त खेल और काम के वक्त काम, यही जिंदगी का मिजाज और निजाम है। हद से ज्यादा खेलना और हर वक्त किताबी कीड़े बने रहना जहन और जिंदगी को बेतवाज़ुन और कुंद कर देता है। खाला, खेल इंसान को चाको चौबंद और चुस्तो दवाना रखते हैं और हमारी हर सलाहियत को उभारते हैं। बंद करो ये सारे फलसफे, इन दकियानूसी बातों को पुरानी किताबों और अपने बंद मकानों तक ही रहने दो।
सुन लो मेरे बच्चों, मैं उम्र में ज्यादा हूँ, बेहतर जानती हूँ, आइंदा इस घर में नहीं आना। खाला, हम नए बच्चे नए दिए जलाने आए हैं और आहार अभी तक 5वीं जमात में इसलिए है क्योंकि वो एक स्पेशल बच्चा है, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास मेरे जैसे स्पेशल उस्ताद नहीं है और हमारे बड़े भी हमारे लिए वक्त नहीं निकालते। निकाले भी तो कैसे? आपस की सियासत से निकले तो ही तो अच्छा वक्त निकाले। ये भी हमारे मोहल्ले में बुरा वक्त है। मेरे उस्ताद कहते हैं इल्म, फहम, शऊर और कदर मंजिलत का ताल्लुक इंसान की उम्र से तो हरगिज़ नहीं बल्कि खलूस, जहानत और मासूमियत से होता है और ये सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अरे मियाँ, मैं तो कहता हूँ आजकल की नस्ल तो है ही बेनस्ली, तहजीब उनमें नाम की नहीं, मगर आपने भी तो महज नाम है। भाई क्या मतलब आपका? मतलब मुझे क्या मतलब आपसे? मतलब जनाब, जब से आपने मकान की रजिस्ट्री का काम कराया है, आप हफ्ते में सिर्फ 2 दफा आते हैं बच्चों को पढ़ाने। असद का हिसाब का बच्चा था, आपने उसे उर्दू अदब की तैयारी करवा दी। अहमद का केमिस्ट्री का बच्चा था, आपने उसे हिस्ट्री की तैयारी करवा दी। असद तो ले दे के जिस तरह पास हो ही गया, अगर अहमद हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों में फेल हो गए। और दुख की बात तो ये है कि उसे अफसोस भी नहीं, और मैं भी अब क्या करूं? मेरे पुराने शागिर्द समीउल्लाह ने आपकी यूनिवर्सिटी का मकाला थीसिस लिखने से इनकार कर दिया है। वो कहता है कि आपने उसे यूनिवर्सिटी में नौकरी तो दिलवाई नहीं, लिहाजा वो आपका मकसद भी पूरा ना करेगा। अब आप और मैं से जितने पैसे दे दें कोई फायदा नहीं। भाई, आप यूनिवर्सिटी में भले हमारे जूनियर थे, अगर आपके और आपके वालिद के यहाँ आसा असरो रसूख था। एक बार तो मुझे याद है कि अरे मियाँ क्या कहूँ, कभी आवाज काम नहीं करती तो कभी नजर काम नहीं करती। बच्चों की डेट शीट में तो कुछ और ही लिखा था। भाई, असद, अहमद और मोहम्मद मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर लगता है आपको अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, जो सुनते हैं अपने लिए सुनते हैं, बाकी सुनाई नहीं देता। भाई, क्या मतलब आपका? अच्छा भाई मियाँ, माजरत, अब मैं चला, मुझे सेठ साजिद साहब की तरफ कुछ काम है। दादा जान, समझा लीजिए अपने लाडों को, असर ठीक तरह नहीं पढ़ता और अहमद और मोहम्मद अब मुझे भी पढ़ाने लगे हैं। ये तीनों किसी काम के नहीं। आपने मेरी इस माह की फीस फिर लेट कर दी। आप मुझे मेरे 50,000 रुपए दीजिए और मैं कल से इन्हें पढ़ाने नहीं आ रही। दादा जान, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं सबा हर वक्त अपने मोबाइल को पढ़ाती रहती हैं और जब मोबाइल नहीं पढ़ रहा होता तब आकर मुझे पढ़ाती हैं और तब आधा मोबाइल करवा कर कहती हैं आधा कल करवा दूंगी।
इसी तरह मेरा हर मजमून, हर ग्रेड आधा होकर रह गया है। इनसे तो बहुत बेहतर ये मेरे स्कूल के उस्ताद हैं। और हर वक्त महंगाई का रोना रोती है। इस बार मैं अपने हिसाब के पर्चे में गलती से इनके बिलों का हिसाब लिखाया। दादा जान मैं आपको क्या ही बताऊं, हमें पढ़ाने के बजाय मैं सवार अपनी मुसीबतों का रोना रोती रहती हैं। उफ, तौबा तौबा। खामोश हो जाओ तुम तीनों। अंकल, मुझे आपकी और अपने वालिद की दोस्ती का ख्याल ना होता तो मैं बहुत पहले इन नालायक लोगों को छोड़ देती। मतलब कोई मतलब नहीं मुझे। आंटी खतीजा, ये देखिए आपके बच्चे, हाय समझाने हैं, किसी काम के नहीं। तौबा तौबा, ये तो रखा है भाई की। आज मुझे देर हो रही। अरे बेटे, तुम्हें फुर्सत मिले तो बताओ सब क्या कर रही हैं। साहबजादे फिर से रह गए बेचारे, और उनकी कोई सुनता भी। अब इस दुनिया में हमारी भी कौन सुनता है, हम तो खुद बेजुबान हैं। तुम तो हो ही जोरों के खिलाफ। अब्बा, आपको वक्त मिले तो हम बताएं जो हम पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। जी बेटा बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। जी जी। ये क्या तमाशा है उबैद साहब, आपने खाने का काम भी शुरू कर दिया है। मुलाजिम रहीम कहाँ है? रहीम बेटा। जी जी साहब। ये घर के अंदर दाखिल कैसे हो? गलती से सो गया था साहब, माजरत चाहता हूँ। जाओ क्या सो जाओ ना टाइम पे, अपनी कार वक्त पे। अब हाँ भी नहीं चाहिए तुमसे। जब देखो मेरी बुराइयां करते हैं, कोई टिकते हैं मेरे सामान के घर, 10 मुलाजिम खरीदते हैं। अरे अब्दुल्ला बेग साहब, क्या बताऊं, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। आपके हमसाये ने छोटे चाचू को बराबर वाला पूरा केक जैसा घर बेचा था, लेकिन उन्होंने मेरे पैसे मार दिए। मैं आपके जानने वाले अफसर करीब पुलिस वाले को लाया हूँ। आपने ही इन्हें यहाँ के इलाके का अफसर तैनात किया था। अरे भाई साहब, मैं सिर्फ तिजोरी से अमीर नहीं, दिल का भी अमीर हूँ। ये उबैद कापड़ी भी इस तरह से झूठ बोल रहा है। मेरे उजले के दाग पर दाग लगा रहा। पुराने घर पेंट करके नई कीमत से ज्यादा में फरोख्त करता है। किराए के घर इतने महंगे, उफ तौबा तौबा। कमीशन खाने की तो इसे बीमारी है, पैसे का मरीज हो गया। मरीज तो सभी लगते हैं अंकल, कोई पैसे का, कोई शोहरत का, और कोई ताकत के नशे का मरीज है। अब्बा, अगर हम भी खामोश हो गए फिर इंसानों के इस शहर खामोशा में, इंसानों के इस कब्रिस्तान में, और कौन बोलेगा? जनाब अब्दुल हक बेग साहब, जनाब अब्दुल्ला बेग साहब, गुज़िश्ता 7 बरस से खिलाफी का इंस्टीट्यूट है, आपकी करम नवाजी। लेकिन अब यहाँ बहुत बुराइयाँ होती हैं, रोज कोई नया झगड़ा, रोज कोई नया मुकदमा, और ये छोटे चाचू, बड़ी खाला और ये उबैद, 20 पूरा मोहल्ला, इनके तो झगड़े ही खत्म नहीं होते। मेरी आपसे गुजारिश है, दोबारा मेरा यहाँ से तबादला करा दीजिए, मुझसे नहीं संभाला जाता ये सब। अब्दुल्ला साहब, आपकी बहुत करम नवाज़ी है, ये कर्म भी कर दीजिए। हर तरह से ये थाना चला के देखिए, नहीं चलाया जाता मुझसे। अब्दुल्ला साहब,
नहीं तो ले लीजिए मेरी एक टोपी और बेल्ट। क्यों फैसलुद्दीन, तुम भी कुछ बोलो। जी जी, जनाब अब्दुल हक साहब और जनाब अब्दुल्ला बेग साहब, इंस्पेक्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। इनका शिकवा शिकायत बिल्कुल जायज है। ये इलाका तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। हर दिन एक नया झगड़ा, हर दिन नई लड़ाई। ये महल्ले वाले तो तौबा तौबा। सुनिया आपने हक साहब। सारे चर्चे को अंकल, हमारे उस्ताद मोमिन साहब कहते हैं कि आप कानून के रखवाले हैं। अगर आप ये अजीम काम नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? या शाहिद यहाँ कोई इस काबिल नहीं। अंकल, आपने अपने कानून से हर तरह से खाना चलाकर देखा, क्या कभी ईमानदारी से चलाकर देखा? क्या कभी ईमानदारी से चलाकर देखा? क्या कभी ईमानदारी से चलाकर देखा? बुआ जी चरखा काट रही हैं। हाँ, उनसे मिलते हैं। चलो अस्सलामुअलैकुम बुआ जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सीते रहो। बुआ जी, हमारा हर हफ्ते इस कटते और जलते जंगल के जानवरों को पनाह देकर आपने बहुत नेकी की है। हमारा हर हफ्ते इस जंगल से गुजर होता है। हम करीब के गांव के बच्चों के साथ खेलने आते हैं और कभी कभी इन्हें पढ़ाते भी हैं। बुआ जी, हमें बहुत मजा आता है। बुआ जी, आप यहाँ में अकेली रहती हैं? आप जैसा क्यों काटती रहती हैं? आपको डर नहीं लगता? आप थक नहीं जाती? अरे बेटा, मजा क्यों ना आए तुम्हें? बच्चों, जो मजा फल के खुदा की खिदमत में है वो किसी फल में नहीं। और जहर मुसलसल ही तो जिंदगी है। थकना कैसा? जिंदगी हरकत और बरकत में है, आराम कहाँ? कहना इस जहाँ में ना उस जहाँ में। बरज़ख की दुनिया इस दुनिया से ज्यादा दूर और ज्यादा सख्त है बेटा। और बेटा, तन्हाई से क्या डरना, जिसके साथ उसका रब हो। हर पल वो भला तन्हा कैसे हो सकता है? आपको देखकर हमें अपनी प्यारी दादी जान की याद आती है। वो भी अपने गांव में चिड़िया, बिल्ली, बतख और बाकी चीजें पाल रखती थी। वो जी, हमने भी बिल्ली और चिड़िया पाली हुई हैं। वो मिलजुल कर रहती हैं। हमारे उस्ताद मोमिन साहब कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह की मखलूक, दरख्तों, फल, फूल और मासूम जानवरों से मोहब्बत नहीं कर सकता वो इंसानों से भी मोहब्बत नहीं कर सकता और बरकत से महरूम हो जाता है। बुआ जी, आपने रोज इस कटते और जलते जंगल के जानवरों को पनाह देकर बहुत नेकी की है। और अफसोस हमारे बहुत से मुर्दा इंसानों पर। बुआ जी, इस दुनिया के जंगल में सबसे बड़े दुख कौन से हैं?
زندگی ایک بار ملتی ہے، مومن کے لیے آزمائش کا سفر ہے، سب مخلوق وقتی مسافر، لیکن ان مسافروں کا سب سے طویل سفر جذبات کا سفر ہے۔ مخلوق کی خدا کے وقت احساس جذبات اعتماد کا سفر ہے، ان میں کسی پہلو کو ٹھیس پہنچانا گناہ عظیم ہے بیٹا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، برزخ کی دنیا اس دنیا سے زیادہ طویل اور زیادہ سخت ہے بیٹا۔ بے شک سزا اس رب کی طرف سے، سزا اس رب کی طرف سے، اور یہی ہمیشہ رہنے والی ہے بیٹا، باقی سب فانی ہے۔ وقت عظیم ترین ذات سے ڈرتے رہو بیٹا، بالکل باقی سب فانی ہے، لیکن حساب اور وقت کا چکر کبھی ختم نہیں ہونے والا بیٹا، باقی سب فانی ہے۔ برزخ کی دنیا اس دنیا سے زیادہ طویل اور زیادہ سخت ہے بیٹا، باقی سب فانی ہے۔ وقت احساس جذبات اعتبار عزت، وقت احساس جذبات اعتبار عزت، وقت احساس جذبات اعتبار عزت۔ کی زندگی میں ایک پل 100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل، تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل۔ آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل، غم کو سینے سے لگانا سیکھ لے، غیر کو اپنا بنانا سیکھ لے، درد سہ کر مسکرانا سیکھ لے، چھوڑ خود غرضی وفا کی راہ چل، چھوڑ خود غرضی وفا کی راہ چل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل، ایک آدم کی سبھی اولاد ہے، کچھ تو خوش ہے اور کچھ ناشاد ہے، جرم ان کا کیا ہے جو برباد ہے، تو زمانے کے اصولوں کو بدل، تو زمانے کے اصولوں کو بدل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل، 100 برس کی زندگی میں ایک پل، 100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل۔ تو
اپنے کاسٹ اور کرو سے ملواتے ہیں۔ عباسی محمد سچل حیات بھٹی، نان اعجاز بٹ، انتظامیہ علی زر بخاری، محمد طارق بن عاطف، ابراہیم جبار، محمد حارث اعجاز، محمد ہادی خان، ریان عابد، اشل وجدان، محمد داؤد ارشد، محسن رضا خان، محسن مند، ڈانس پرفارمنس حاشر ارمغان، شہیر ارمغان، طاہا سندھو، محمد ریان، آریان حسین، حسن نثار، محمد قیوم، عیسیٰ خان ملک، آلیان علی، محمد داؤد عظیم، جان فیض، راہم کاظم، باؤد ارشد، عیسیٰ علی، ڈانس پروپس صفت اللہ وقار، میوزیشین اور سنگر شیخ محمد سرور اور سید محمد ندیم الحسن ندوی، میوزک ڈائریکٹر میکائل شہریار، کاسٹ داہک شاہ نواز، داہک کامران، داہک عبداللہ لطیف، گاہک محمد ریان علی، گاہک محمد اسماعیل بھٹی، گاہک محمد آیان، راہگیر بزرگ محمد داؤد ارشد، بوا جی جنہوں نے ہمیں زندگی کی ساری اچھی باتیں بتائیں اور جن کا کہنا ہے کہ سزا بھی اللہ کے ہاتھ میں اور جزا بھی، درسی جس کو لگتا ہے کہ بڑے لوگاں دی بڑیاں ہی گلاں زریاب، دودھ والا جس کا ماننا ہے کہ اس کا دودھ جنت کی نہریں اور حور جیسا ہے، پھل والا جس کا ماننا ہے کہ اس کو سب سے کم بھاؤ اور قیمت میں اپنے پھل بیچتا ہے، اگر آپ نے بھی خریدنا ہے تو اسے ضرور رجوع کیجیے، سبزی والا جن کا کہنا ہے کہ ان کے ٹماٹر بہت ہی مزیدار ہیں، آہا ٹماٹر بڑے مزیدار، واہ ٹماٹر بڑے مزیدار، حلوائی جن کا کہنا ہے کہ چاہے آپ پوری دنیا گھوم لیں آپ کو ان سے بہتر کچوری کہیں نہیں ملنے والی، اور ان کی کچوری بھی ان کی طرح، چھوٹے چاچو جن کا کہنا ہے کہ ان سے شریف اور نیک اس پوری دنیا میں کوئی نہیں، رانا محمد شایع، بڑی خالہ جن کا کہنا ہے کہ ان سے اچھا فرشتہ صرف انسان دنیا میں کوئی نہیں، اور وہ دوسرے محلے کیا گئی سب ان کو بھول ہی گئے، آہد، ماہد اور فہد جو آپس میں ہیں ہم قافیہ پر سب کے ہیں ساتھی، محمد قیم، محمد داؤد عظیم، راہم کاظم، پراپرٹی ڈیلر عبید جن کا کہنا ہے کہ وہ مارکیٹ ریٹ سے بہت کم میں گھر فروخت کرتے ہیں، حشام احمد، سب انسپیکٹر فضل الدین جن کا کام انسپیکٹر صاحب کی ہاں میں ہاں ملانا ہے، حاذق عدنان، پولیس انسپیکٹر کریم صاحب جو اتنے تنگ ہیں اس محلے سے کہ وہ اپنی نوکری چھوڑنے کو تیار ہیں، رافع احمد، ملازم رحیم چاچا جن کے اوپر ہمیشہ نیند کی گرفت رہتی ہے، رافع احمد، پیاری ٹیوشن ٹیچر مس صبا جو ہر وقت اپنے موبائل فون کو ہی پڑھاتی رہتی ہیں، والد عبداللہ بیگ صاحب جن کا ان کے بچوں کی زندگی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، حسن نثار، والدہ خدیجہ بیگ جو کہ بہت ہی زیادہ برانڈ کانشیس ہیں، دادا جان پروفیسر عبدالحق صاحب جو اپنے پوتوں کے مستقبل کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، استاد قطب الدین صاحب جو کہ بچوں کو پڑھانے کے بہانے اب دادا جان سے کوئی نہ کوئی کام کروانے آ جاتے ہیں، استاد مومن مختار صاحب جن سے بچوں نے ساری اچھی باتیں سیکھی، محمد ہادی خان، محمد 8ویں جماعت کا طالب علم ہے، طاہا سلمان سندھو،
अहमद 9वीं जमात का तालिब इल्म है। आर्यान हुसैन। और अब मिलिए हमारे असद से, जो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, जिसका कहना है कि वो छोटा सा एक बच्चा है पर काम करेगा बड़े बड़े। मोहम्मद रेयान। सेट डिजाइन। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मैडम निदा मंजूर, मैडम समिया शरीफ और मैडम हिरा कैस का, जिन्होंने ये खूबसूरत सेट तैयार किया है। डांस, ये जो आपने दिल आवेज डांस और सूफी रक्स देखा है, ये हमारी मैडम हिना शहरियार और मैडम हिना नुमान ने तैयार करवाया था। इनका शुक्रिया अदा हम करना चाहते हैं। स्टाफ एडवाइजर, अब हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम उर्दू डिपार्टमेंट का, खास तौर पर मैडम नबीला खोकर और मैडम शहजादी ज़ेबुन्निसा, जिन्होंने इस खेल को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। इस खेल की इंचार्ज मैडम शाहीन एजाज हैं। अब हम मैडम शाहीन एजाज का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिनकी बदौलत ये खेल मुमकिन है। हम मैडम जोया नकवी के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तहरीर लिखी, जिसमें बच्चों और वालिदैन दोनों के लिए अनमोल पैगामात हैं। अब हम हेड मास्टर साहब जनाब राजा अशफाक अहमद से दरख्वास्त करते हैं कि आप वर्दी प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद तुराब हुसैन साहब के साथ स्टेज पर तशरीफ लाएं, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और साथ साथ एक ग्रुप फोटो भी बन जाए। चीफ सेक्रेटरी मैं वली मोहम्मद और मैं मोहम्मद साद बिलाल। हम गुजारिश करते हैं मैडम निदा मंजूर, मैडम समिया शरीफ, मैडम हिरा कैस, मैडम शाहीन एजाज, मैडम नबीला खोकर, मैडम साहबजादी ज़ेबुन्निसा और मैडम जोया नकवी को कि वो स्टेज पर आकर हमारे साथ। हम दरख्वास्त करते हैं मैडम निदा मंजूर, मैडम हिरा कैस और मैडम समिया शरीफ से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और मैडम हिना नुमान और मैडम हिना शहरियार का।